American writer Mark Twain once said that India is the cradle of human race, the birthplace of human speeches, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. The most valuable and the valuable artistic material in the history of man are treasured up in India only. सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हमको सदा इस पर ही गर्व है। So wishing all our fellow Indians a very happy Republic Day. So Sania, do you know why do we celebrate 26 January as Republic Day? Niharika, Republic Day is an extremely important day for our nation. On this date, India emerged as the largest democratic nation along with its longest written constitution. Today, we are celebrating 72nd Republic Day of our country. So on this momentous occasion, let's promise our motherland that we will perform all our duties as a true citizen of India. Though we cannot celebrate this day together in our school, but it doesn't belittle its significance. So here we are with a bouquet of program. When it comes to the celebration of rhythmic harmony, melodious music, the AVFPS musicians have always charmed this audience. So once again, they are giving the message of unity.
century due to its all-round development. She got freedom from the British government in 1947. From there on, she never looked back and made rapid progress in the growth trajectory. First of all, the entire credit goes to its founding fathers as well as to the constitution makers. So sharing here, we have an English speech by Shubhanshi Panda telling us more about our great country. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions, I should point to India. Most Honorable Shri S. Bhaskar Kumar, Chairman of the school, respected Principal Sir, worthy teachers, guardians, and my dear friends. Today, on the most auspicious occasion of 72nd Republic Day of our country, I, Shubhanshi Panda, feel extremely privileged to extend my heartiest compliments and greetings to all of you and to all those millions of Indians who have contributed to take India to a great height of achievements even at the time of COVID-19 pandemic. I also feel duty-bound to offer my sincerest tributes to those brave sons and daughters of Mother India who have sacrificed their lives fighting against the British rule to make this blissful day possible in our life. I am saluting India, where humanity presents itself in such a dizzying, creative burst of cultures, religions, races, and tongues with a seamless picture of unity in diversity unparalleled anywhere else. Ladies and gentlemen, we all have gathered here to celebrate our Republic Day. But why is this day so important for every Indian? Why do we celebrate it? Friends, we all know that even after getting independence from the British rule in 1947, India was not a self-rule country. It was governed by the English laws, the Government of India Act 1935. It was with the implementation of our constitution only that India got true liberty from the British rule on 26 January 1950. Republic Day thus commemorates the date on which the Indian Constitution came into force in 1950. Under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, our exemplary Indian Constitution was drafted by the 389 members of Constituent Assembly in around 2 years, 11 months and 18 days. India has propagated her beliefs, tales and civilization in all around the world. But what makes India one of the most incredible and loved nations across the world? It is because of its glorious past. India is the country where number 0 was invented by Aryabhat. Sushruta, the father of plastic surgery, was an Indian. We were called Vishwaguru. No doubt we were in a dormant state for a brief time period due to regular invasions by foreign invaders. But our soul, our spirit remained as invincible, as freedom-loving and vibrant as ever before. But today again, Indian voice is audible at a global level. Indians have proved their power everywhere, whether it is land, water or air. The spirit of India's scientific community and inventors remained unflinching even in this COVID-19 pandemic. India has made a bunch of exceptional achievements in the field of science and technology in 2020. For example, India's first hydrogen fuel cell powered car, ISRO's human space mission, the Gaganyaan, and the invention of Vyomitra, a female humanoid. Our nation achieved a major milestone as after Kalpana Chawla, now it is Raja John Wood Puturchari who has been selected for a space mission by NASA. On 5th August 2020, National Education Policy 2020 has been approved by the Union Cabinet. On 16 January, our country got its New Year gift as our nation started vaccination drive for the coronavirus. But we must not feel complacent due to these achievements. I think a lot needs to be done in the field of education, health, waste management, empowerment, road safety and so on. Let's collaborate to ensure a proper place for our nation among the developed countries. Let's come forward to transform India into a land of everyone's dream, in which all are happy, healthy, safe and prosperous. I would like to conclude my speech with the following lines. History is our witness, and martyrs are the God. We are disciples of Gurus, this land is saints abroad. Compassion is our heritage, in humanity do we trust. Neither Hindu nor Muslim, we all are Indians first. Jai Hind, Jai Bharat.
सुप्रभात। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम रिद्धिमा वासनी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो बांसुआ हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खिलती है किसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खिलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बच अब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बज अब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। थैंक यू। Hi everyone, my name is Aryashi Sharma from class UKG Brown. सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। मैंने देश की आजादी के लिए कई कार्य किए हैं। मैंने देश के लोगों को एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। Good morning, respected principal sir, teachers and my dear friends. My name is Ritika Rastogi. I read in class first Brown. भारत माता की जय। देश हमारा सबसे प्यारा न्यारा, हिंदुस्तान हमारा जान से ज़्यादा भी प्यारा। ये न्यारा हिंदुस्तान हमारा, इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जहाँ से प्यारी है।
इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जहाँ से प्यारी है, कहते इसे हम जन्मभूमि, ये प्यारी धरा हमारी है। अलग अलग धर्मों में भी तो एकता की परछाई है, अलग अलग धर्मों में भी तो एकता की परछाई है। देश एक है, एक ही नारा, भारत हमारा जान से प्यारा। जय हिंद। थैंक यू। Good morning, honorable chief guests, respected principals and teachers, and all my dear friends. My name is Vidya Yadav, studying class 2nd round, and today I am speaking few lines on Indian Republic Day. This year we are celebrating our 72nd Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year with great zeal. It is National Festival of India. On 26 January in 1950, the Constitution of India came into effect. The Constitution of India gives us our fundamental rights like freedom of speech, education, religion, and many more. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the architect of Indian Constitution. On this day, our President of India hoists the national flag at Rajpath, New Delhi. On this day, let us pledge to be the responsible citizen of India. Thank you. वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है, वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं तान्या यादव आज के महान दिन पर आप सभी को भारत की गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। 26 जनवरी हमारे देश का बहुत खास दिन है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन पूरे भारतीय पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि संविधान की वजह से ही हमें समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में परेड, भाषण और गायन आदि प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। गणतंत्र दिवस हमें हमारे देश की एकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन राजपथ नई दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन किया जाता है जहां पर सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं, जहां भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। और सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस धरती माँ के बेटी, मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता और मेरे खून का एक एक कतरा इस झांसी को कुर्बान है। झांसी आप भी जाते हो, मैं भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आप राज करना चाहते हो, मैं उसकी सेवा। भाग बिरंगी भाग, तेरे शामत आए हैं, हर हर महादेव। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों से तेज होती है। मैं भगत सिंह अपनी भारत माता को आजाद करा के रहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक Good evening, ma'am. My name is Sudra. I study in UKG Blue. मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। कुछ लोग मुझे पंडित के नाम से भी जानते हैं। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। देश पर जिसका खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। देश के जो काम न आए वो बेकार जवानी है। मेरा नाम है आजाद,
पिता का नाम है स्वाधीनता। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर जो हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, ना जाने कितने बलिदान और कुर्बानियों की कहानी इसके इतिहास में समाई हुई है। गणतंत्र दिवस के महत्व पर और प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भूमिका दुरेजा को। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। विद्यालय के चेयरमैन एवं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एस भास्कर कुमार जी, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, समादरणीय शिक्षा वृंद, मेरे अग्रज एवं अनुज, सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं भूमिका दुरेजा, कक्षा 9 ब्राउन की छात्रा, आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर अपने कुछ विचारों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ नमन करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। जी हाँ, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये सुखद अवसर हमें वीर शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। वे देश के लाल, देश की खातिर गोलियां खाते थे और सीने पर गोलियां खाकर लहूलुहान होकर गिर पड़ते थे, परंतु कोई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है, तो बस एक अलौकिक तेज, और उस तेज में एक अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। 15 अगस्त 1947 को ये विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि ये देश महापुरुषों का, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधकों संतों का, ये देश वीर बलवानों का, ये देश वीर बलवानों का। महापुरुषों और गुणीजनों की उपस्थिति में भारत की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक भारत का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान लागू तो हो गया था, परंतु ये बात अब भी जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्रत्येक भारतीय को हिंदुस्तान की गौरव गाथा को विश्व पटल पर ध्वनित करना है। जहाँ पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी के कारण त्रस्त है, चारों ओर हाहाकार है, परंतु गणतंत्र के संविधान की अखंडता एकता का ही प्रमाण है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हमने कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किए हैं। कोविड के विरुद्ध हमारी लड़ाई को भारतीय संविधान की भावना ने ही मजबूत किया है। आत्मनिर्भर भारत ने कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन जैसी कोरोना वैक्सीन बनाकर बड़े देशों के सामने एक विलक्षण उदाहरण पेश किया है। उपदेशिका का मंत्र है, लोकतंत्र गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, निरपेक्षता का मान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। मेरे संविधान की ये मान्यता है कि भारत के आम नागरिक को उसके महान कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। ओडिशा में रहने वाले श्री डी प्रकाश राव, जो कि एक चाय की दुकान चलाते हैं, उन्होंने कटक शहर में झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल चलाकर सम्मान प्राप्त किया। निश्चित ही पद्म अवार्ड जैसे सम्मान हमारे गणतंत्र की भावना और
परिकल्पना को पोषित करते हैं। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और धार्मिक मतभेदों को भुलाकर भारत की गरिमा को विश्व स्तर पर दीप्तिमान करना चाहिए। जहां विश्व के अन्य देशों में लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है, वहीं भारत जैसे देश में संविधान, संसद और न्यायपालिका को बहुत ही गरिमामयी पद दिया जाता है। अतः इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने स्वार्थ को पीछे रखते हुए समाज व देश की भलाई के लिए भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप काम करेंगे। जहाँ देश कोरोना जैसी विषमताओं को दरकिनार करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, वहीं दूसरी ओर राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को आयात कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को जानकर कंधे से कंधा मिलाकर संकल्प शक्ति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। प्राणों में ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति। तुम चढ़ो ध्येय की शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन देश का बच्चा बच्चा पद लिप्सा और अर्थ समूहन को त्याग कर पतितों को गले लगाने लगेगा। और तब हम ये कहने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु ना छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने देश पर सरस न्यौछावर करने और उसे चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने का दृढ़ संकल्प लें और मन में बस यही भाव रखें। इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है। जाति पाति भाषा व द्वेष का बीज पनपने ना देंगे। अब इन आधारों पर देश को बंटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को। गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Without a dance performance, a celebration always remains incomplete. Now here we have little kids with the captivating dance performance. शहीद हुए हैं
तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जापानी है पतलून, इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी है पतलून, इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में मेरा इतनी सी दिल की आरज़ू। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Good morning, ma'am. My name is Tanmay Gupta. I study LKG Brown. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी ये पतलून, हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून, हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे यहाँ है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम भले। I am Samavit. I study in LKG Brown. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, टूट पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। Happy Republic Day. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।